Good morning, students. This is Virendra, your computer science teacher. I am here to give you an important lecture on Microsoft Excel. Students, as you know that currently your chapter number 7 is going on, and the name of chapter number 7 is editing the worksheet. It means that whatever the previous content I have delivered to you, the previous content already given the introduction and few contents related to this chapter. In this video, we will going to proceed the next topics. Okay, we will take some topics which will proceed your chapter at further step. So students, right now this video belongs to class 6 student and this is the lecture number 77. Okay students, so what topic we are going to study in this video? Okay, let's have a quick look. Okay students, so come to this side. In this, first we are going to understand changing cell contents. In this, two subtopics are there. Number one, how to modify the cell. Okay, in this there is two methods are there. Number one, by replacing the cell content, and number two, by using the edit method. Okay, so these are the contents, and once it is finished, then we are going to proceed for undo and redo. Okay, students. So first of all, before proceeding, let's have you can say just overview of what topics we are going to take here. Okay, so before proceeding, I just want to give you a warm welcome to all my dear students, my participants, and my dear viewers. Students and all my dear participants and viewers, I have a request for you that at the end of the video, when you have watched the complete video, if you like this video, then definitely I want a like from your side, and just you have to share this video to other your friends, and don't forget to press the bell icon, because bell icon gives you the notification to inform you, to update you that this is the video that is recently uploaded on the YouTube channel. So once again, a warm welcome to all the viewers, all my participants, all my students on this YouTube channel. Okay, so right now I am going to write the topic number 1, and then we will have a brief explanation about the same. Okay, so your topic number 1 is that is changing cell content. Changing cell contents. ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो पढ़ना है कि आपके सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स को कैसे हमें एडिट करना है. ओके, आपको याद होगा कि जब आप किसी भी कंटेंट को या किसी भी चीज को आप लिखना स्टार्ट करते हैं सेल के अंदर, सो उस सेल के जो कंटेंट्स हैं वो एक और जगह है जहां पर दिखाई देता है. आपका जो आंसर होगा प्लीज आप उसको YouTube कमेंट पे जरूर बताएं. व्हाट्सएप के जरिए भी आप बता सकते हैं कि वह एक्सेल जब आप कंटेंट्स टाइप करते हैं यहाँ, तो टाइप करते वक्त वो उस इंटरफेस में कहां पे दिखाई देता है. सेल में दिखाई देता है, सेल के अलावा. ओके, सो द आंसर इज फॉर्मूला. यस, फॉर्मूला वह जगह है जहां पर आपको फॉर्मूला तो दिखाई देता है. आप अपने एक्टिव सेल में जो कंटेंट्स लिखते हैं वो कंटेंट्स भी आपको वहां पर दिखाई देता है. ओके, सो जब आप कंटेंट बटन को जब आप उस कंटेंट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको किस तरह से दिखाई देगा. आपको याद होगा fx होगा यहाँ पर, और fx
एफ एक्स के सामने ऐसे बॉक्स होगा और इसके जस्ट पहले भी एक बॉक्स होता है यहाँ पर। ये जो एफ एक्स है इसका नाम तो है इंसर्ट फंक्शन बटन, ओके। और जैसे ही आप सेल के अंदर टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पर जो भी आपके कंटेंट्स है यहाँ पर एक आपका ऐसे क्रॉस बन जाएगा और एक आपका ऐसे बन जाएगा, दो बटन अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे आपके, ओके। तो जहाँ पर fx लिखा हुआ है fx से जस्ट पहले दो बटन आपके हाईलाइट हो जाएंगे, जिसमें से ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये तो आपका है कैंसिल बटन, दिस इज कॉल्ड कैंसिल बटन एंड दिस इज कॉल्ड एंटर बटन, ओके। देखिए जब आप अपने सेल में लिखना स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है कि आपका जो सेल है that particular cell is already selected. Once it is selected, you will have a dark boundary. Okay, means that cell is selected. Now, once you start typing, okay, so first of all, the content begin to writing here, and once the writing is complete, you are pressing the enter button. Am I right or wrong? I think you are saying right, okay. So जब कभी भी हम अपने सेल को लिखना स्टार्ट करते हैं, सेल को लिखने के बाद आपका जो कर्सर है वो कर्सर आपका सेल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो कंटेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, accepting the cell content, तो अगर आप सेल कंटेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर की प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे, या फिर आप इस बटन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं माउस की हेल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डेटा को एक्सेप्ट कर लिया टाइप करने के बाद। लेकिन अगर आप उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं आप, तब क्या करेंगे हम, तब आप इस कैंसिल बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार, ओके। सो वंस यू हैव क्लिक्ड इन इट, देन इमीडिएटली योर डेटा विल बी डिसअपीयर फ्रॉम द सेल, ओके। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है आपको, वहाँ पर उस पर यही ध्यान रखा गया है कि कैंसिल बटन और एंटर बटन इन दोनों का यूज क्या है। ये बटन कब आपके हाईलाइट होते हैं, कब आपको दिखते हैं, तो देखने का तरीका वही है जब आप स्टार्ट करेंगे टाइपिंग का, कहां पर, सेल के अंदर, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है हमारा कि यहाँ पर जब हम टाइपिंग खत्म कर देते हैं या हमने डेटा एक्सेप्ट कर लिया और हमें लगता है कि उस डेटा में कुछ गलती हो गई है, ओके। तो जब हमारे डेटा में कुछ गलती होगी तो उस गलती को ठीक भी करना है, okay. So how you are going to make the correction or make the correction in the cell content, किस तरीके से हम करते हैं इस चीज को हम देखते हैं। सो यहाँ पर सेल करेक्शन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है रिप्लेसिंग द सेल कंटेंट, या तो आप डेटा को रिप्लेस कर दीजिए आप, यानी पुराना डेटा हटाइए और नया डेटा वहां पे लिख दीजिए आप। दूसरा तरीका होता है एडिट मोड पे जाने का, ठीक है। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से सेल कंटेंट को रिप्लेस करेंगे, किस तरीके से सेल के कंटेंट्स को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप आते हैं लाइन यूज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रिप्लेसिंग, ठीक है, किस तरीके से सेल के कंटेंट्स को हम रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए हम क्या करना होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपने एक सेल के अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर, एक सेल के अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर, ओके। और आप चाहते हो कि कंप्यूटर की स्पेलिंग कुछ गलत हो, जैसे मान लेते हैं वो अपने यू नहीं लिख पाया, आप जल्दी में आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, जल्दी में, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है वो आपसे गलत हो गई, और अब आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से रिप्लेस हो जाए
वहां से डिसअपीयर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, एक मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। एक मोड है आपका, इस मोड का नाम है ओवरराइड मोड। इस मोड का नाम है ओवरराइड मोड, और इसको लाने के लिए कीबोर्ड में एक बटन है आपके पास, इंसर्ट। तो पहले आप इंसर्ट की आप पहले प्रेस कर दीजिए एक बार। इंसर्ट की प्रेस करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि जो आपने लेटर टाइप किया है उसी के ऊपर वो रिप्लेसिंग स्टार्ट कर देगा, उसी के ऊपर। ओके, और रिप्लेस करने के बाद आपको जो मिस्टेक आपसे हुई थी वो मिस्टेक आपकी सही हो जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ सब में बिल्कुल आपका आया होगा। ओके, in case if you have any kind of doubt, any kind of problem, definitely you can get in touch with me immediately. Okay, don't hesitate. Okay, let me repeat one more time. कि आपने क्या किया, एक सेल के अंदर कंप्यूटर लिखा, लेकिन आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी। अब आप क्या करेंगे यार, सबसे पहले ओवरराइड मोड में जाएंगे यार। ओवरराइड मोड में जाने के लिए क्या करना होगा, इंसर्ट की को प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जब उसको प्रेस करेंगे आप, प्रेस करने के बाद आप जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो उसी के ऊपर को लिखना स्टार्ट कर देंगे जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है। पुराना वाला हटेगा और नया वाला वहां पे आ जाएगा उसी के ऊपर। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ इंसर्ट की एंड अ मोड वेयर वी आर गोइंग टू राइट हियर, दैट इज कॉल्ड ओवरराइड मोड। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिट मोड। चलिए यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर एडिट मोड, एडिट मोड, एडिट मोड। ओके, सो यहाँ पर देखिए एडिट मोड कैसे होता है। यहाँ पर एडिट मोड का मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी सेल के अंदर कोई कंटेंट टाइप किया और ये मान के चलते हैं कि जो कंटेंट है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, तो जब आपका कंटेंट अभी भी इनकम्प्लीट है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप क्या करिए, अपने कीबोर्ड से इस बटन को प्रेस करिए, F2, इस बटन को प्रेस करिए। जब आप F2 को प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो कर्सर होगा इमीडिएटली उस सेल के अंदर आ जाएगा, इमीडिएटली उस सेल के अंदर आ जाएगा। और सेल के अंदर आने के बाद वहां पे जो चीजें इनकम्प्लीट रह गई हैं, जो चीजें आपकी रह गई वो चीजें आप टाइप कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से एडिट मोड एक्टिव करेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब आपने सेल को सेलेक्ट किया, जब आपने सेल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उस समय जो मोड होता है, जो मोड एक्टिव हो जाता है, हो जाता है रेडी मोड। ठीक है, और अगर आपने सेलेक्ट करने के बाद जब रेडी मोड में गया और आप इस समय पहुंच गए कहां पर, आपने प्रेस कर दिया F2 प्रेस कर दिया, तो जब आपने F2 प्रेस कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि आप रेडी मोड से एडिट मोड में आ गए हैं आप, और इसको आने के बाद और आप वहां पर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, सो रेडी मोड से यहां जाने के लिए प्रेस करना होगा F2, और रेडी मोड से ओवरराइड मोड में जाने के लिए प्रेस करना होगा इंसर्ट। क्लियर? और दूसरी चीज मैंने क्या बताया आपको कि जब आप अपना डेटा कंटेंट टाइप कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इंटर की आप क्लिक करें या कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करें। अदरवाइज आप यहां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए कैंसिल बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पहला टॉपिक। ओके, so I definitely am sure that you are able to understand each and everything what I am trying to teach you. Okay students, so students, now it's time to come the next topic, that is undo and redo. Okay, so please have patience. Okay, I am just going to give you one important question for you. Okay, and that question brings you one extra knowledge for you. Okay, so please have patience. I am just going to provide the details for the same. Okay, so students, now this time came here to give you one extra question for you.
and if you able to give the answer of that question, it means you are having extra knowledge for that also. So just remind you, I'm just going to give you the question for you, and immediately once you receive the question, immediately you have to give the answer on the YouTube comment or WhatsApp. Okay, so your question is, what is the shortcut key for copy and paste? But the condition is, no need to give the answer Control C or Control V. I doesn't want this. I want some different shortcut key for this. Yes. Okay. You no need to tell Control C and Control V. I want Control. Okay. Do not use the Control key. Okay. Apart from this, there is one more key to have copy paste. Okay. So I'm waiting for your answer. Okay. So आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा, और आप इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, जरूर पूछिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारा टॉपिक है अनडू और रीडू। ओके, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। और एक चीज और स्टूडेंट्स, जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ये भी थ्योरी क्लासेस है। ये आपका जो इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है, वो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, आप उस टॉपिक को अलग से समझेंगे आप। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज undo and redo। ओके, तो मैं इसको डिफरेंशिएशन की तरह बता देता हूं आपको। यहां पे मैं लिख देता हूं undo और यहां पे मैं लिख देता हूं redo। ओके, सबसे पहले undo में देखते हैं। undo में it cancels the last action। it cancels the last action। यहां पर it revoke the cancelled action। it revoke the cancelled action which was performed recently। okay, which was performed recently। okay, point number 2, shortcut key। shortcut key हो जाएगा कंट्रोल प्लस Z। यहां पर भी देखिए शॉर्टकट की क्या होगा रीडू के लिए, शॉर्टकट की इसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस Y। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट रीडू को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है रिपीट। ओके, उसको हम रिपीट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सेल के अंदर कोई कंटेंट आप टाइप कर रहे हैं। ओके, आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई आपसे। ओके, कुछ गलती हो गई, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक्शन ही आप जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं आप। सो आप केवल कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल Z प्रेस करते ही वो पूरा का पूरा जो एक्शन जो आपने लास्ट में किया होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इट कैंसल्स द लास्ट एक्शन। ओके, सो आपको बता दूं मैं आपको कि आपका यहाँ पर जो क्विक एक्सेस टूलबार होता है आपका,
जो आप MS Excel ओपन करेंगे, so in that interface, okay, you have to observe where is the title bar. टाइटल बार में आप देखिए कोई एक्सेस टूल बार होता है लेफ्ट साइड, वहां पर लेफ्ट साइड में आपको अनडू और रीडू ये दोनों ही बटन आपको मिल जाएगा। और उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है, ये आपको सिंबलाइज करेगा अनडू को। दिस symbolizes undo, okay, which is available in quick access toolbar, ओके। तो ये आपका सिंबल हो गया अनडू के लिए, ये आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूलबार मिल जाएगा ना। इसी तरह से देखते हैं रीडू का सिंबल किस तरीके से होता है, ये आपका रीडू का सिंबल है, ओके। सो इस रीडू के सिंबल में आप इसको भी आप क्विक एक्सेस टूलबार में देख सकते हैं, ओके। सो it symbolizes redo, okay, which is available in quick access toolbar, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आपका था अनडू और रीडू, ठीक है। रीडू के बारे में थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी कंटेंट को टाइप किया, टाइप करने के बाद कंट्रोल Z कर दिया, उससे प्रीवियस एक्सेस जो भी आपको चाहिए होगा, जो आपने लास्ट कैंसिल किया है, उसके बाद और भी कोई जो उससे भी लास्ट रहा होगा, जो प्रीवियस रहा होगा, आपने कंट्रोल Z 2 बार कर दिया। तो 2 बार जब कर दिया तो जाहिर सी बात है प्रीवियस के दो जो लास्ट एक्शन है वो भी कैंसिल हो गए। प्रीवियस के दो जो हमारे लास्ट एक्शन है वो भी हमारे कैंसिल हो गए। सो नाउ व्हाट वी विल डू, यस व्हाट वी विल डू, नथिंग टू वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स, नथिंग टू वरी अबाउट इट, जस्ट यूज रीडू, ओके। प्रेस कंट्रोल Y, okay, so it will revoke the previous action which will earlier cancelled, and just press one more time to revoke the second last action which was cancelled, okay। तो याद रखना आप सभी लोग यहाँ पर जो undo है वो 50 टाइम्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ओके। सो याद है अगर आप अनडू नहीं कर पा रहे हैं तो क्विक एक्सेस टूलबार में जो आपको बटन है वो डिसेबल हो जाएगा और वहां पे लिखा होगा आपका, वहां पे लिखा होगा कैन अनडू, ठीक है। अगर आप अनडू नहीं कर पा रहे हैं तो वहां लिखा रहेगा कैन अनडू, और यहां पर यहां लिखा होगा कांट रिपीट, यहां लिखा होगा कांट रिपीट, ओके। सो ये था हमारा 4 तरीके के डिफरेंसेस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और अब बारी है आपके उस क्वेश्चन की जो मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। मैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था व्हाट इज द shortcut key for copy and paste, but condition is no need to tell Control C or Control V. So the answer of this question is shift plus insert. Let me repeat, आप यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करेंगे। ऐसा करने से आपका जो कंटेंट है पहले कॉपी होगा फिर उसके बाद पेस्ट होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे।
और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है जो आपको उसके लिए आप वीडियो चाहते हैं आप, तो आप अपनी जो रिक्वेस्ट है YouTube कमेंट में जरूर डालें ताकि मैं आपको आने वाले दिनों में उसका वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ओके, so students, now it's time to finish up this video. So thank you so much for watching this complete video. Okay, please do like this video. Don't forget to press the bell icon also, because bell icons give you the notification for updated video. So students, thank you so much for watching this video. Thanks again.